ایران کی نئی لیڈرشپ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، میں نے بات چیت کے لیے حامی بھر لی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا نئی ایرانی قیادت امریکہ سے بات چیت کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ امریکی چینل کو انٹرویو کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ ہمیں کتنی کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ ایک ہی کارروائی میں 48 ایرانی رہنماؤں کا قتل بڑی بات ہے۔ ایران میں فوجی آپریشن تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مزید کہا، ایران نے امریکہ یا اسرائیل پر حملہ کیا تو ایسی طاقت استعمال کروں گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، بہتر ہوگا وہ ایسا نہ کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، حملے کے بعد ایران کا رد عمل ہماری توقع سے کم رہا۔ ایران میں ابھی بھی کچھ اچھے امیدوار ہیں۔ علی خامنائی کی موت کے بعد سفارتکاری زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ عراقی سرحد کے قریب ایران کے مغربی شہر مہران میں فوجی اڈے پر امریکی اور اسرائیلی حملہ، 40 سے زائد ایرانی فوجی شہید۔ مقامی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں اب تک 43 ایرانی فورسز کے اہلکار شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر بارڈر گارڈز شامل ہیں۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 250 کے قریب پہنچ گئی۔ 750 سے زائد افراد زخمی۔ محراب اسکول میں شہید طالبات کی تعداد 153 ہو گئی۔ تہران پھر دھماکوں سے گونج اٹھا، سید خاندان، قصر چوراہے، وانگ سکوئر اور متری اسٹریٹ میں دھماکے۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جوابی آپریشن بادہ صادق چہارم جاری۔ امریکہ نے اپنے 3 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ سینٹ کام کے مطابق ایران کے خلاف آپریشن میں 5 فوجی زخمی بھی ہوئے۔ کئی فوجی اہلکاروں کو معمولی زخم آئے ہیں جنہیں واپس بھیجا جا رہا ہے۔ ایران کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی جنگی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر 4 بیلسٹک میزائل داغنے کا دعویٰ۔ مقبوضہ بیت المقدس کے نواح میں بیت الشمس پر ایرانی میزائل حملہ۔ اس علاقے میں اسرائیل کی نیوکلیر تنصیبات سمیت دیگر حساس تنصیبات واقع ہیں۔ ایرانی میزائل حملے میں 9 اسرائیلی ہلاک ہوئے جبکہ 23 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت پر میزائل حملہ۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل حملے کے بعد تل ابیب کی متعدد عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ تل ابیب، حیفا اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے، تعلیمی ادارے بند۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر مشترکہ حملے، ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی شہادت کی تصدیق۔ بیٹی، نواسی، داماد اور بہو بھی جامع شہادت نوش کرنے والوں میں شامل۔ علی رضا عراقی کو ایرانی سپریم لیڈر کے فرائض انجام دینے والے عبوری کونسل کا رکن مقرر کر دیا گیا۔ کونسل میں صدر مسعود پزشکیان اور چیف جسٹس غلام حسین محسنی اجازی شامل۔ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب تک کونسل سپریم لیڈر کے فرائض انجام دے گی۔ عبوری کونسل کا شہید آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایران میں 7 روزہ تعطیل، 40 روزہ سوگ کا اعلان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، ایران امریکی تنصیبات اور اسرائیل پر جوابی حملے شدت کے ساتھ جاری رکھے گا۔ شہید سپریم لیڈر کے نظریے کو جاری رکھا جائے گا۔ آیت اللہ سید خامنائی 1989 میں ایران کے رہبر اعلیٰ بنے۔ آیت اللہ خمینی کے انتقال کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ 36 برس سے زائد عرصے تک سپریم لیڈر کے عہدے پر فائز رہے۔ اسرائیل نے ایرانی سپریم لیڈر کو کیسے شہید کیا؟ امریکی اخبار نے امریکی اور اسرائیلی گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق CIA نے ایرانی قیادت کے اجلاس کا سراغ لگایا جس کے بعد اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ایران پر حملے سے کچھ دیر قبل CIA نے ممکنہ طور پر سب سے اہم ہدف آیت اللہ علی خامنائی کی درست نشاندہی کر لی تھی۔ CIA کئی ماہ سے خامنائی کی نقل و حرکت اور قیام گاہوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ یہی انٹیلیجنس اطلاع اعلیٰ ایرانی حکام اور آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی وجہ بنی۔ تہران میں حکومتی کمپاؤنڈ میں ہونے والے اجلاس کی اطلاع ملنے کے بعد ہفتے کی صبح حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایرانی آرمی چیف عبدالرحیم موسوی پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل محمد پاکپور، وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ اور سپریم لیڈر کے سینئر مشیر علی شمخانی بھی حملے میں شہید ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر کے دفاتر اور صدارتی آفس کو 7 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جہاں سید علی خامنائی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں مرکزی عسکری قیادت بھی موجود تھی۔ سرکاری ایجنسی کا کہنا ہے کہ مسلح افواج کے مزید اعلیٰ کمانڈرز بھی شہید ہوئے ہیں جن کے نام بعد میں جاری کیے جائیں گے۔ جنرل پاکپور کی شہادت کے بعد بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی نے پاسداران انقلاب کی کمان سنبھال لی۔
सऊदी अरब में रियाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले नाकाम बना दिए गए। सऊदी हुकाम के मुताबिक हमलों में कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रिंस सुल्तान एयरबेस में अमरीकी फौजियों की रिहाइश है। यूएई में ईरानी मिसाइल हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई, 58 मामूली जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जाँ बहक अफराद में बन्नू से ताल्लुक़ रखने वाला पाकिस्तानी शहरी मुरीब जमान शामिल। अमाराती हुकाम के मुताबिक 165 ईरानी मिसाइलों में से 152 को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया, 13 मिसाइल समंदर में गिरे। ईरान ने यूएई पर 541 ड्रोन्स भी फायर किए, जिनमें से 506 को तबाह किया गया, 35 ड्रोन शहरी इलाकों में गिरे। ईरान का अबू धाबी में अस्सलाम एयरबेस पर गोदाम पर ड्रोन्स हमला, कंटेनर्स को आग लग गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद धमाके। अमाराती वजारत अफरादी कुव्वत की दफातर में रिमोट वर्क की सिफारिश। यूएई में 4 मार्च तक तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान, ऑनलाइन क्लासेस के अहकामात। यूएई हुकूमत की दरखास्त पर पाकिस्तानी काउंसलेट दुबई में 3 मार्च तक तमाम काउंसिल सर्विसेज मुअत्तल कर दी गईं। सऊदी अरब में ईरानी सफीर की वजारत खारजा तलबी, हमलों पर जवाबदही की गई। इलाकाई सूरत हाल पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा, अगर फौरी मुदाखलत ना की गई तो ये तनाज़ा एक बड़े इलाकाई तसादुम में बदल सकता है, जिसके ख़तरनाक नताइज मुरतब होंगे। तुर्किया और सऊदी अरब डायलॉग के जरिए तनाज़े के हल के लिए काम कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राब्ता। अली खामनाई की शहादत पर अफसोस का इजहार किया, कहा खामनाई का कत्ल अखलाकियात और बैन अल-अक़वामी कानून की बेरहमाना खिलाफ वर्जी है। ईरानी पासदाराना इनकलाब ने दुनिया की मसरूफ तरीन तिजारती गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। तमाम बहरी जहाज़ों को निकल जाने का इंतबाह जारी। आबनाए हुर्मुज़ ओमान और ईरान के दरमियान 33 किलोमीटर चौड़ी बहरी पट्टी है। सबसे तंग मकाम पर जहाज़रानी का रास्ता सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ा है। रोज़ाना दुनिया के तेल का 20% और LNG का 30% हिस्सा आबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है। EIA के मुताबिक इस बहरी राहदारी से हर साल 600 अरब डॉलर्स का सामान गुजरता है। लंबे अरसे के लिए बंदिश से आलमी मईशत पर गहरे असरात मुरतब होंगे। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद नया सुप्रीम लीडर कौन होगा, हर तरफ एक ही सवाल। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी और आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई के नाम सर फहरिस्त। तरीक़ाकार के मुताबिक ईरान की आला शुरा के 88 बड़े उलमा मिलकर नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई अपने 4 मुमकिन जानशीनों के नाम बता चुके थे। फिरौन से कहो मूसा दरियाए नील पर आ रहे हैं। अली अपनी जुल्फ़िकार के साथ इसराइल आ रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई ने आखिरी पैगाम में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल भी नक़ल किया। रहबर आला ने कहा, ईरानी कौम अपने इस्लामी असबाब को अच्छी तरह जानती है। ईरानी जानते हैं क्या करना है। शहादत पर रोना नहीं, खुश होना, क्योंकि हम लड़कर शहीद हो रहे हैं। किसी ताकत के सामने झुका नहीं, ताकि आखिरत में जवाब दे सकूं कि मैं इस्लाम के लिए लड़ा था। शहादत पर आयतुल्लाह खामनाई के एक्स अकाउंट पर सूरह अहज़ाब की आयत पोस्ट। रहबर आला की शहादत के बाद ईरान भर में लाखों सोगवार सड़कों पर निकल आए। ईरानी अवाम के इंतकाम के नारे। मशहद में इमाम रजा के रोज़े पर स्याह परचम लहरा दिया गया। तेहरान, तब्रेज़, शिराज, ज़िंजान, क़म समेत दीगर शहरों में अली खामनाई की शहादत पर हर आंख अश्कबार। इराक़ी हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़े पर भी ज़ायरीन की गरियाजारी। मुक़द्दस रोज़ों पर इनक़लाब की लामत, सुर्ख लाइटें रोशन। इराक़ी शिया रहनुमा आयतुल्लाह अली सिस्तानी का आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ईरानी कौम से ताज़ियत का इजहार, सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की इस्तदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। इजलास में ईरान, अफगानिस्तान समेत इलाकाई और खत्ते की सूरत हाल का जायजा लिया गया। पाकिस्तान के खत्ते में क़याम अमन के लिए किरदार और इक़दामात ज़ेर गौर। पाकिस्तानी शहरियों के ईरान से बज़रिया आज़रबाईजान इनखला पर ब्रीफिंग। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। पार्लिमान का मुश्तरका इजलास भी आज होगा। सदर आसिफ ज़रदारी खिताब करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और उर्दन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला दोम से टेलीफोनिक रब्ता। तीनों रहनुमाओं ने हालिया इलाकाई कशीदगी पर तफसीली बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी तौर पर तहम्मुल, कशीदगी में कमी और बामकसद मुकालमे की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल घड़ी में मुमलिकत बहरीन और मुमलिकत उर्दन समेत खित्ते के दीगर बरादर ममालिक के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का अयादा किया। खित्ते में अमन की बहाली और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में रूस का दौरा मनसूख कर दिया। सदर मुमलिकत का आयतुल्लाह खामनाई और ईरानी रहनुमाओं की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। पैगाम में कहा, दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान ईरानी अवाम के साथ खड़ा है। ऐसे कदावर रहनुमा के इंतकाल पर पूरी मुस्लिम दुनिया में गहराइयों से एहसास किया जाएगा। अल्लाह इस मुश्किल वक्त में ईरानी अवाम को सब्र व इस्तकामत अता फरमाए। एक्स पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ईरानी कौम से इजहार ताज़ियत। कहा, बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी पर तशवीश है। सरबराहान मुमलिकत को निशाना बनाना कदीम मुसल्लमा रिवायत के खिलाफ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से उलमाए कराम की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान पर हमलों पर हर पाकिस्तानी रंजीदा है। कौमी मफादात को सामने रखते हुए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। दुश्मन हमें तकसीम करने की साजिश कर रहा है। कौमी इत्तेहाद, यकजहती और इस्तेहकाम ही पाकिस्तान की असल ताकत है। उलमाए कराम की वज़ीर दाखिला को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा। रेड जोन, डिप्लोमेटिक इनक्लेव और दीगर इलाकों में अमन की सूरत हाल का जायजा। कहा, एहतजाज की आड़ में शरपसंदी की कतन इजाज़त नहीं दी जा सकती। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान मरकज पोस्ट पर कंट्रोल हासिल कर लिया। फौजी जवानों की शुमाली वज़ीरिस्तान से मुल्हिका सरहदी बाढ़ अबूर करके मरकज पोस्ट की जानिब पेशकदमी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस को देखते ही अफगान तालिबान फरार, कंपाउंड्स क्लियर करके दुश्मन के झंडे उतार दिए गए। खुसूसी वीडियो मंजर आम पर आ गई। पाक फौज ने सरहदी इलाके में अफगान तालिबान की पोस्ट को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। अफगान तालिबान रजीम को हर महाज पर मुसलसल पसपाई का सामना। अब तक भरपूर जवाबी कार्रवाई में 445 कारिंदे हलाक, 580 से ज़ायद जख्मी हो चुके। 182 चौकियां मुकम्मल तबाह, 31 पर कब्जा। अफगानिस्तान में 46 मकामात को फ़िज़ाई कार्रवाई से मौसर निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान रजीम के तबाह टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 185 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया, पाक फौज की अफगान जारहियत के खिलाफ मौसर कार्रवाई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का भरपूर हिमायत का ऐलान। अफगान तालिबान रजीम की शरंगेजी की खुलकर मजम्मत। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां। शहरियों का कहना है, अफगान कौम ने पाकिस्तान में 50 साल गुजारे लेकिन उन्होंने वफा नहीं की। अफगान तालिबान ने दूसरे मुल्कों की ईमा पर पाकिस्तान पर हमला किया। अफगान तालिबान को अपनी शरंगेजी का भरपूर जवाब मिल गया। पाकिस्तान के 1 इंच पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। अपनी बहादुर फौज को सलाम पेश करते हैं। हर नौजवान पाक फौज के साथ खड़ा है। कौम मुल्क के लिए हर कुर्बानी को तैयार है।